I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a teaspoon blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I can tear you apart or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. All the four words are correctly spelled and appropriate in the context. Okay. The recent spike in cases of sudden severe होएगा ना, severe spelling गलत है. Okay. Social distancing during the pandemic has reduced the transmission of a whole range of diseases. Whole variety of diseases हो सकता है. And a lack of exposure to them may have left some children lack of exposure to them may have left some children unprepared for infections. Yeah? सही है. whole range of diseases, whole variety of diseases. रेंज की तो वैरायटी हो सकता है. द ट्रांसमिशन ऑफ अ होल रेंज ऑफ डिजीजेस. रेंज का कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं लग रहा मुझे, वैरायटी होना चाहिए. ओके. अ स्टडी फ्रॉम 2019 showed that a history of violence, low trust in the police, drug use and criminal peers, PWRS होता है, peers are common in young weapon carriers. Okay, agriculture has many detrimental environment effects, including being the primary contributor to biodiversity loss and a major driver of water. Growing food in towns and cities could be a wonderful way to make the most of our land, and at the same time AWDRE pressing challenges. Okay, जो क्या चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए. ओके. A और B. The US government invested billions of dollars in technology to capture carbon released from coal power plant, but most of the carbon capture units were never built. तो A, D, C, B. उसके बाद आफ्टर नहीं, द यूनाइटेड किंगडम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आफ्टर ऑनशोर विंड. यूनाइटेड किंगडम सेकेंड लार्जेस्ट बायोमास और बायो एनर्जी इज, ये तो क्या हो जाएगा,
is अच्छा ओके बायोमास और बायो एनर्जी इज द यूके's सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आफ्टर ऑनशोर विंड. हाँ ये होगा. तो DACB नहीं DB होगा ना पहले तो. हाँ मोस्टली वी स्टिल रिलाई ऑन एक सेकंड क्या CCAA तो CC से ट्राई कर लो. मैंग्रोव्स एंड पेटलैंड टू रिमूव ना ए से मोस्टली वी रिलाई ऑन मैंग्रोव एंड पेटलैंड टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. CA mangroves and peatland to remove नहीं. A से mostly we rely on carbon नहीं. Mostly we rely on natural habitats such as woodlands, mangroves and peatland to remove carbon from the atmosphere. कोई रंजन तो कार्य नहीं है. कभी कभी ये भी तो देखा करो. Is unlikely to ever replace. What is unlikely ever to replace? Kind of a big role in boosting food supply. Okay, BBDD. While this B से नहीं D से करो. A big role in boosting food supply. It could play. C के बाद D आगा. C के बाद D आगा. ये आगा. Could play a big role. BDC. While this kind of urban agriculture is unlikely to ever replace conventional farming, it could play a big role. Okay, accounting for around a third of greenhouse gas emissions, the agriculture and food sector plays a huge role in climate change. ये हो सकता है. The agriculture and food sector plays a huge role in climate change. Okay, A से और C से accounting A. पहले C से देख लो. The agriculture and food sector plays a huge role in climate change, accounting for around a third of greenhouse gas emissions. सब दिख रहा है. ये होना चाहिए. Fill in the blank. As well as being resource intensive and inherently wasteful, cryptocurrencies are also incredibly as well as being resource intensive and inherently wasteful, cryptocurrencies are also incredibly favorable, volatile. मुश्किल लग रहा है मुझे. क्लियर नहीं हो रहा. इसको क्या छुड़ा ना उसको. इसको मार्क करके देखते हैं. द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट इज डैश ऑन द कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज that bioenergy power plants are developing to meet its climate change goal, is advancing on the carbon capture technologies, is attempting on the is spoiling, is counting, is reviving on the is advancing. Household waste collectors go on strike for a month, during which huge amount of rubbish accumulated. Food waste collectors go on strike. The security of our national food supplies in the United Kingdom is a question of the security of our national food supplies in the UK is a question of growing importance. Since 84% of fruit and 46% of vegetable eaten in the UK are imported, these vital food groups are particularly dash to supply grasses, particularly vulnerable to supply grasses. Okay, इसमें क्या करना है.
choose one that provides the correct pair of antonyms or synonyms. ओके, रेनोवेट होता है किसी चीज़ को बेटर करना. एडुलेशन होता है मिलावट करना. अडल्ट्रेट भी मिलावट हो जाता है एक बार को, कल अडल्ट्रेशन तो अलग हो जाती है. एनरेट, एडुलेट, तो 3 और 4 का है ऑप्शन? नहीं है ही नहीं. 1 और 2 का नहीं पता. 1 और 4 का रेनोवेट और अडल्ट्रेट नहीं. 2 और 3 वेनरेटिव से तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, नहीं पता, इसको रहने दो. ओके, ये 3 क्वेश्चन तो नहीं पाएंगे हमसे. चलो ये करते हैं. क्या है इसको, बहुत टाइम है, पढ़ ही लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट्स दैट अ लिविंग वेज विल हैव फॉर बिजनेस. द लिविंग वेज विल हैव फॉर बिजनेस, इसमें कौन से बेनिफिट्स हैं? ठीक है, लिविंग वेज फॉर बिजनेस. It can be difficult to see a way out of the current cost of living crisis. Prices continue to rise, and there are fears that if nothing changes, many families will face serious financial hardship. The effect of this will be devastating. Okay. Poverty causes premature death, poor nutrition, disease, and exhaustion. In the face of this bleak outlook, there is an urgent need for effective leadership to bring about change, but not just from governments. Businesses too can play a crucial role. Okay, one of the single most important thing any company can do to reduce poverty is to pay its employees a living wage. Living wage will have for business. Our new report demonstrates in detail how a living wage not only benefits employees and workers but also employers and society as a whole. Receiving a living wage helps to break cycles of poverty. है कुछ ऐसा? By ensuring that pay is sufficient to cover household essentials as well as the occasional emergencies or unexpected. Our expert interviews reported that being paid a living wage can reduce stress level and the excessive working hours sometimes needed to make ends meet. This in turn means fewer sick days and overall greater employee well-being. Okay, from a business perspective, this can result in lower staff turnover, reducing recruitment and training cost. Productivity can increase. There are even early signs that raising entry-level wages may be linked to increased revenue. Okay, which of the following is or are mentioned in the passage as benefit of the living wage for society? Increase expenditure in the local economy, reduction in poverty and inequality, lower crime rates. Crime rates का कुछ नहीं बोला शायद अभी तक. Put in it how a living wage not only benefits employees but also employees and society as a whole. Receiving a living wage helps to break cycles of poverty, reduction in poverty and inequality. ठीक है. Pay sufficient to cover household essentials and well as occasional emergency and unexpected expenses. Greater employee well-being, lower crime rates को तो कुछ नहीं बोला. ठीक है, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इक्वलिटी तो बोला है. इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द लोकल इकोनॉमी ये भी नहीं बोला है. We also discovered that as living wage commitments become more common, the benefits reach further into society. Wage increases stimulate spending in the local economy. तो ए और बी तो हो गया. ठीक है. Spending in the local economy while reduction in poverty and inequality and can lead to greater social cohesion. In short, our report supports growing evidence that living wages offer multiple benefits beyond the experience by the individual. So this should provide businesses. So देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से. The following steps have been taken by Unilever towards living wage commitments. Unilever द्वारा ना, तो Unilever है कहाँ पहले ये बताओ मुझे. ठीक है. They should provide businesses with the confidence to see wages not just as a net cost but as a burden. After all, the business can
Fortunately, being a living wage is becoming a new marker of business leadership. In 2021, Unilever. Following steps have been taken by Unilever towards a living wage. Unilever announced plans to work towards a living wage for the people who provide goods and services to the company in areas like logistics and packaging. To achieve this, Unilever is partnering with suppliers to commit to and report on paying their workers at least a living wage, including suppliers in increasing living wage according to the increasing current living वो ये आ रहा था understand serious okay वही आ रहा था. Which of the following best sums up the main idea of the passage? Living wage are a valuable investment to business. Living wage have more pros than cons. Poverty can only be tackled if business are giving wages. नहीं must wise. Okay, the author believes that providing a living wage to employees is the solution for the current cost of living crisis. Which of the following is closest in the meaning of the word marker? Indication. और वो भी हो सकता है क्या नाम being a living wage employer is becoming a new dash of business leadership. मार्किंग होएगा. रोड ब्लॉक तो हो नहीं सकता, फ्लो तो हो नहीं सकता, एप्टीट्यूड नहीं हो सकता, असर्शन भी नहीं हो सकता. क्लोजेस्ट फॉलोइंग ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ क्रूशियल, वो तो क्लोजेस्ट था ना. ऑपोजिट क्रूशियल, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल. ठीक है 3 मिनट इसमें देखो. एज वेल एज बीइंग resource intensive and inherently wasteful. Cryptocurrencies are also incredibly मैं volatile के साथ जाऊंगा. ओके तुम तो नहीं हो रहे थे, तुम बताओ. कैप्रीशियस नहीं पता. 1 2 फिकल माइंडेड हो सकता है. 2 3 फिकल माइंडेड. एरेटिक, फ्लाइटली नहीं पता. अपैथेटिक 1 3 डोमिनियरिंग. सिंपैथेटिक नहीं, एपैथेटिक है. डोमिनियरिंग ऑलमोस्ट सिनोनिमस है. ठीक है. 1 4 फर्वेंट का नहीं पता. 2 3 नहीं पता. तो उसके बाद रेनोवेट करना, किसी चीज़ को बदलना. अडल्ट्रेट. 3 4 का कुछ नहीं दिया है. 2 4 का दिया है. 1 का 4 के साथ दिया है ना. रेनोवेट करना नहीं. 2 को 3 के साथ नहीं. 2 को 4 के साथ कर सकते हैं आप. अडल्ट 2 और 4 पॉसिबल है. जहाँ पॉसिबल है वहीं पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल नहीं है. ठीक है चलो. उसके बाद कैप्रीशियस, फिकल, एरेटिक, फ्लैटली. ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब रत्ती भर भी कुछ नहीं पता. चलो आगे बढ़ते हैं. 25 से 10 नंबर नहीं आ सकते इसमें. 25 अगर आएंगे तो भी बहुत है. अगर 25 आते हैं इसमें तो मुझे अभी उधर 30 करने पड़ेंगे मिनिमम, है कि नहीं. चलो फिर करते हैं. करो. ठीक है. रुक जाओ अभी पहले. कितने हैं? 43 10 11 12 सवाल है. ठीक है कोई बात नहीं. तो 27 15 42 420 427 430 430 430/5
5 8 40 बचेंगे 3 5 31 86 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 4x। तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 तो 8 दूनी 16 6 दूनी 12। उसके बाद 12 9 21 21 8 29 290 297 300 306 306 51 गुणे 5 55 25 255 255 में से अगर तुम 225 हटाओगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 7 21 210 और 180 390 390 30 30 57। उसके बाद 4 3 12 नहीं 4 ओके 4 5 9 9 13/21 9 + 13/21 + 13/21 21 9 1 9 9 2 18 189 और 13 202 202/21 मल्टीप्लाई बाय 126/101 तो वो ऊपर 2 हो जाएगा 21 छिंगा 12 आ जाएगा। ठीक है ओके 14 दूनी 28 280 माइनस 164 36 और 80 116 116 580 580 58/2 29 200 माइनस 80 120 196 14। ठीक है ओके 8/3 + 7/4 4 8 32 और 21 53 53/12 तो 53/12 गुणित 13/2 मल्टीप्लाई 24/13 13 से 13 2 से 12 और 12 से 12 53 बचा 53 11 64 8 का आ जाएगा। उसके बाद 12% ऑफ 20%। ठीक है 2.4% ऑफ 20 पंजे 100 4 पंजे 20 तो 112 आ जाएगा ना। तो 132/4 132/4 4 तो 12 बचेगा 1 4 तो 12 33 हो जाएगा। और 171 + 1 अच्छा 28 15 43 43 और 17 60 600 601 607 610 610/5 5 कम 5 122 122 गुणित x 122 से करेगा तो 12 निम्मा 108 और ये हो जाएगा 3 और 7 10 10 11/30 10 11/30 30 300 311/30 गुणित 660/x बराबर 22 है तो 22 बराबर x हो जाएगा। तो 3 30 से करेगा तो 3 22 हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा 311 आ जाएगा। ओके अभी इसमें क्या है In the class, there are 5 sections PQRST. In each section, all the students either play outdoor sports or play indoor sports. Here below is the paragraph and the information regarding the total number of students and the number of students who play outdoor. ठीक है ये टोटल है ये आउटडोर है और सब सेक्शन वाला इंडोर हो जाएगा। ठीक है इन सेक्शन P 45% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले आउटडोर तो आउटडोर 100 तो 45 हो गए। आउटडोर स्पोर्ट्स प्ले फुटबॉल देन फाइंड द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इन सेक्शन 45। ठीक है उसके बाद आगे बढ़ो। एवरेज तो नहीं रखा टोटल नंबर है ना एवरेज भी नहीं। ओके व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन QRS वो प्लस इंडोर स्पोर्ट्स। QRS में इंडोर वाले में कितना हो जाएगा तो 260 में से 260 में से 140 120 120 और 190 में से 110 80 QRS के बाद 240 में से 140 100 तो 120 80 200 300 300 का एवरेज निकालना तुमको 100। ठीक है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन S and T टुगेदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन S and T टुगेदर तो 240 और 250 टुगेदर वो प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स। आउटडोर स्पोर्ट कौन कौन खेलता है 140 और 110 250। ठीक है तो 490 में से 250 खेलते हैं
If the ratio of the number of students who plays cricket, football and handball respectively 7, 13, 15, 7, 25 पे है, then how many students from section S and T play cricket given that they play only given 3 outdoor sports? क्रिकेट कौन सा है? क्रिकेट 70 हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा. Okay, if 40% of the number of students in section R are females, 40% फीमेल्स हैं तो किससे 76 फीमेल्स हैं, एंड 35 फीमेल्स ऑफ सेक्शन आर प्ले आउटडोर, तो 35 आउटडोर खेल रही हैं, और इसमें से 110 में से 35 खेल रही हैं, तो 65 नहीं खेल रही हैं, 75 फीमेल आउटडोर नहीं खेल रही हैं, 35 आउटडोर खेल रही हैं. ठीक है, नहीं 35 खेल रही हैं, 35 फीमेल आउटडोर खेल रही हैं, 76 टोटल फीमेल ही हैं, है ना. तो 35 और 76 40, 36 और 5 41 नहीं खेल रही. ठीक है, सेक्शन आर प्ले आउटडोर स्पोर्ट. देन इन सेक्शन आर व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु प्ले आउटडोर? तो 35 फीमेल खेल रही हैं आउटडोर, 35 फीमेल अगर आउटडोर खेलेंगी तो 110, तो 65 मेल खेलेंगे. ठीक है, 65 में 75 मेल खेलेंगे. देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु प्ले आउटडोर स्पोर्ट एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु प्ले इंडोर स्पोर्ट्स? तो 41, 4, 7, 11, 110, 115, 116. ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन पी एंड टी हु प्लेस इंडोर स्पोर्ट्स. तो पी में कितने हैं? 220 में से इस हो जाएगा 120, और इसमें 250 में से 110 जाएगा 140, 20 का फ़र्क है. ठीक है, ओके. तो उसके बाद ये जो है 15 और 8 23 है, 23 और 16 है, तो 4 का कर लो, 4 का करोगे तो 11 आ जाएगा, 2 का होगा वहाँ पे. ठीक है, उसके पास 24 या 72 नहीं, उसमें नहीं है, 7 में है, 17 है, 24 है, 34 है, 17, 34, हाँ 51, 24, 34, 68, 69, 70. What will come in place of the question mark in the following series? 426 पहले 3 माइनस होएगा, है ना, 426 पहले 3 का फ़र्क है, फिर 9 का फ़र्क है. ठीक है, तो 14 और 13 27 का फ़र्क है, 3 9 27 81 का फ़र्क आएगा, 306 आ जाएगा. उसके बाद ओके इंटू 5 है, इंटू 6 होगा, हाँ इंटू 6 है, इंटू 5 है, इंटू 4 कर लो, 1872 हो जाएगा. उसके बाद 41 के बाद 11 62, 21 62, 41 21 के बाद 16 के बाद 11, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 के बाद 5 6 का फ़र्क है, 6 के बाद 1 का फ़र्क आ जाएगा, 96. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करना आवश्यक है इन्हें भी. ठीक है, in a storeroom quantity of wheat is 50% more than the quantity of rice. ठीक है, 50 2 से 3 है, 3 ये 2 ये of rice, while quantity of corn in it is 20% more than the quantity of wheat. 20% more than 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 जाते 18 हो जाएगा. ठीक है, एंड ट्वाइस एज मच एज क्वान्टिटी ऑफ राजमा इन इट. तो राजमा, ये राइस था, तो 9 हो जाएगी राजमा. ओके, क्वांटिटी ऑफ राइस इन द स्टोर रूम इज 90, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है. ओके, फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ राइस एंड कॉर्न इन द स्टोर रूम. राइस और कॉर्न 10 और 18 28. फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ व्हीट एंड राजमा इन द, तो व्हीट 15 और 9 24, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2. ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना, फाइंड द प्रॉफिट ना, हाँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल इज 80. रेड बॉल की 80, रेड बॉल की 80 और ब्लू बॉल की 100. ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 5 रेड बॉल्स एट अ 22.5% प्रॉफिट. तो 1/8 प्लस 1/10, 10 8 18, 18/80, तो 9/40, 40 से 49, 40 से 49 जो रहा है
और 40 से 49 जाएगा तो सेलिंग 5 रेड बॉल्स, 40 की चीज़ रेड बॉल की कितनी थी 80 थी, तो 80 से कितना जाएगा 98 जाएगा, तो 18 आएगा। 18 हर जगह पे कमाओगे, 18 पंजे 90 कमा ली तुमने यहाँ पे 1 में, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 6 ब्लू बॉल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 5 3/20 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा, तो 3 का है, 3 पंजे 15, 15 छक्के 90 बराबर है ना, 3 पंजे 15, 15 छक्के 90, ठीक। ओके, इन अ स्टोर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गार्लिक, टोमेटो, पोटैटोज एंड अनियन इज ये रहा respectively, and the total number of all four mentioned vegetables is 336, 411, 6, 17, 17 और 11, 28, 28 से कम 28, 28 12, 12 का चौक 48, 12 तो 84, 12 छिंग 72, 12 11 132, ठीक है। क्या क्या है, गार्लिक, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, ठीक है। फाइंड 140% ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ गार्लिक एंड पोटैटोज, नंबर ऑफ गार्लिक्स एंड पोटैटोज, तो 48 और 4 7 11, 110, 118, 120 का 120 में 12 4 48 का 4 12 4 16, 168, ठीक है। फाइंड 75% ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस इन द स्टोर, पोटैटोज एंड अनियंस इन द 13 7 20, 200 202 204, 204 का 3/4 4 5 51 51 और 3 153, क्वान्टिटी 1 ग्रेटर देन क्वान्टिटी 2, ठीक है। ये तो ये हो गया। मेरे पास कितने मिनट हैं, ऑलमोस्ट 7 मिनट हैं, 5 में 12 सवाल हैं, ये तो नहीं होना है, चलो कोई नहीं। ओके, अजार कंटेंट 299 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर ऑफ ओनली शुगर एंड सॉल्ट इन द रेशियो ऑफ 4:9, 4 9 13, 13 दूने 26, 23 हो जाएगा, 23 चौकू 92, 92 8 1 207, ठीक है। 69 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड, 69 grams of salt is added to the jar, then what will be the ratio of the sugar to salt in the resultant mixture, तो 92 अपॉन 916 की 6 यहाँ से 1 7 276, तो 2 से हो जाएगा 46, 2 से हो जाएगा 1 2 3 अच्छा बचेगा 1 2 8 16, 2 दूनी 4 23 हो जाएगा, 2 6 12 बचेगा, 2 9 18 23 और 69 है, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक। A dog alone can eat a chicken in 24 घंटे, डॉग एंड अ कैट टुगेदर, ये 24 घंटे में काम खत्म करता है। अ डॉग एंड अ कैट टुगेदर कैन ईट द सेम चिकन एंड 15, तो 1 + 20 मिलकर 15 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। 24 ओके पंजे 120, तो 5 15 8 120, उसको 3 की एफिशिएंसी हो गई, वो 40 में ख़त्म कर देती है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 3 डॉग्स एंड अ कैट टुगेदर टू ईट द चिकन, 3 डॉग का मतलब 15 और 1 कैट का मतलब कितना हो जाएगा, कितना कैट है कितना कैट है, एंड ठीक है 3 पंजे 15 और 3 18, 120/18, तो 20/3। अरे क्लिक होने में दिक्कत मत किया करो यार प्लीज़, ठीक है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ओके, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2400, ठीक है। ए ने 2400 लगा दिए। 4 months लेटर बी जॉइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3600 और ठीक है, एंड सी जॉइन द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4800। इफ द एनुअल प्रॉफिट, तो पहले तो वो कर लो, तो 00 से 00 काट दिए, 12 दूनी 14, 12 36, 12 चौक 48 और 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, तो 12 और 12 एकदम बराबर इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय गिवन 3 people टुगेदर, 3 3 9 5 3 15 1500, ठीक है। बोट कैन ट्रैवल 110 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 165 मिनट, 110 किलोमीटर इन 165 मिनट, तो कितना हो जाएगा 130, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लो, नहीं हावर में चल रहा है, तो 110/1 किलोमीटर पर आवर करोगे तो 6 दूनी 12, 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट का मतलब है 2 3/4, 4 दूनी 8 3 11/4, 11 4 10 चौको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 108 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 108 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 40 4 36 और 110 किलोमीटर इन 44 ना,
40 4 44 डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 11 चौको 44, 11 10 4 से 2.5, 3 3 9, 3 आ जाएगा 5.5 घंटे, ठीक है। उसके बाद पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 22.5 मिनट, ठीक है। तो ठीक है, तो 22 थी, अच्छा नहीं, 22 चौको 88 और 90 हो जाएगा, 22 चौको 88 और 90 हो जाएगा, 90 का तो नहीं, 180 का तो हो जाएगा, जो 8 का हो जाएगा, 36 पंजे हो जाएगा, 20 का 9 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल 50%, तो 90 को करना है 9 5 14 में लग जाएगा, 6-15 घंटे लग जाएंगे, ओके। उसके बाद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 86, तो 43 इक्वल्स टू 2l + 7, 43 में से आ जाएगा 36, 36 के बाद 18, 18 और 7 25, 18 और 25 एल और बी, व्हाट इज द एरिया, तो 18 पंजे 90, 0 8 9 36 9 45 450, ओके। रुपीज़ वाई वैन इन्वेस्टिंग स्कीम ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1800 इन 2 साल, ठीक है। तो 1 साल में 900 का इंटरेस्ट, तो किसी चीज़ का 12% 900 है, किसी चीज़ का 12% 900 है, किसी चीज़ का 3/25 ऑफ x बराबर 900 है अगर, तो 300 गुणित 25, तो 25 से 75, 7500 था वो, ठीक है। इफ़ रुपीज़ वाई माइनस 500 7000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन स्कीम बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव। 100 से 121 निकालोगे, तो 121 में तुम 70 से गुणा कर लोगे, 0 7 7 7 14 14 से लेकर 8 8470, ठीक है, ओके। द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बेड्स + 1 पर्स इज इक्वल्स टू 1960, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बेड्स एंड 2 पर्स इज इक्वल्स टू 4520, ठीक है। तो 4 बेड्स + 2 पर्स इज इक्वल्स टू 1938 3920, तो ये 600 आ जाएगा, बी की वैल्यू 600 आ जाएगी और 1200 हो जाएंगे, 760 हो जाएगा, पर्स की वैल्यू 760 हो जाएगी। व्हाट विल द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 1 बेल्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 1 बेल्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 से 90 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तुमको। उसके बाद इन मार्च सौरभ स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट विच इज इक्वल टू 14,000, 28 की वैल्यू अगर 14,000 है, 100 की वैल्यू 50,000 हो जाएगी, ठीक है। 50,000 तुम्हारी सैलरी है और 36,000 तुम्हारी एक्सपेंस थी, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीज हिज सेविंग्स बाय 20%, इफ़ ही इंक्रीज हिज सेविंग्स बाय 20%, तो 14 दूनी 28, 16,800 कर देगा, 16,800 सेविंग हो गई। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डिड ही स्पेंड इन अप्रैल, अच्छा 16,800 खत्म कर दिया, 17,000, तो 33,200, तो 66.4। उसके बाद एक क्वेश्चन और हो जाएगा, द एवरेज नहीं एज वाला है तो रहने दोगे, कोई छोटा दिखा दो। ओके, द सम ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स a and b is 64, a + b = 64, डिफरेंस बिटवीन a and b is 16, तो 2a = 70-80, a = 40 और b = 24, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 3 24, 8 5 40, तो 3 5 8, 3 5 15 8 120, ओके। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ, जो 16 से तो है नहीं, तो 8 से तो है, और 8 96 9 60, अब नहीं 9 सेकंड में तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, 9 सेकंड टाइम था। नंबर प्राइस ऑफ अ फोन इज इतना, इफ द फोन इज सोल्ड आफ्टर 2 डिस्काउंट ऑफ 25, नहीं ना पर 9 सेकंड में तो नहीं कर पाता, ठीक है। चलो आगे बढ़े, रीजनिंग करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी यही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना तो नहीं आएगा। तो मतलब पजल्स को तो बाद में करना, पहले मिसलेनियस कर लो, और एक मिसलेनियस छोड़ देंगे फिर पजल करेंगे, ठीक है। एक मिसलेनियस को छोड़ देंगे, 1 से 2 मिसलेनियस छोड़ देंगे फिर पजल करेंगे, ओके। 1 2 3 गो।
सात लोग हैं, 7 पर्सन ये वर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, ये बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन हैव बीन कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 31 दिसंबर 2021। ठीक है, 2021 से करोगे तो 2004 वाला जो है 17 साल का हो जाएगा, और 4 के बाद 5 तो 22, और फिर 5 तो 27, फिर 2 तो 29, फिर 4 तो 33, उसके बाद 5 तो 38, उसके बाद 4 है ना, 4 तो 42। अब आगे बात करूँ, एंड द एवरेज ऑफ 2% कंसिडर द होल नंबर ओनली। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं मुझे ये बताओ 2004 जो है ये इवन था, तो ये इवन होगा और ये ऑड होगा। ठीक, उल्टा है। रघु इज 11 ईयर्स एल्डर देन नीता, रघु इज 11 ईयर्स एल्डर देन नीता, तो 42 से 31 नहीं आ रहा, 38 से 27 आ रहा है, 33 से 22 भी आ रहा है, तो रघु इज 11 ईयर्स एल्डर देन नीता। ठीक है, और रघु इज 11 ईयर्स एल्डर देन नीता। ठीक है, 11 का है तो 18 का तो आ नहीं रहा। हाँ, आगे बढ़ाओ। द एज डिफरेंस बिटवीन करण एंड नीता इज लेस देन 6 साल का, तो लेस देन 6 साल का तो 22, करण यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पर वो वहाँ नहीं हो सकता। तो करण कैन भी कहीं भी हो सकता है, करण की उम्र कहीं भी हो सकती है, तो करण माइनस नीता इक्वल्स टू लेस देन 5 है, लेस देन 6। द एज ऑफ करण इज अ प्राइम नंबर, एज ऑफ करण इज अ प्राइम नंबर, तो 27 थी तो 22 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 29 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 29 ओके, करण लेस देन 6, 27, 6, 33, 27, तो ये करण हो जाएगा, और उसका प्राइम नंबर है तो 22 से 17 प्राइम है, 27 प्राइम नहीं है। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ तरुण एंड रोहित इज 32, एवरेज ऑफ तरुण एंड रोहित इज 32, तो 32 का मतलब 64 हो रहा है, 42 और 22 64, हाँ यही हो रहा है। ओके, तरुण एंड रोहित इज 32। ठीक है, तरुण रोहित इनमें से कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तरुण इज नॉट एल्डर देन रघु, तरुण यहाँ पे आ जाएगा और रोहित ऊपर हो जाएगा। जूली वॉज बॉर्न आफ्टर डेविड्स बर्थ ईयर, तो जूली वॉज बॉर्न आफ्टर ना, तो जूली और डेविड, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसमें, 2-3 मिनट लगा दिए। डैश इज द एल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल, रोहित इज द एल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल, नन ऑफ द अबव। उसके बाद व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन करण एंड रघु, करण कितने का 29 और 38, 9 का फ़र्क है। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर नीता, नीता के जस्ट बाद तरुण। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन वो वन बिटवीन रघु एंड जूली, रघु और जूली 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, डेविड वॉज बॉर्न इन विच ईयर, डेविड 33 साल पुराना है, 33 तो 21 ही हो गई, 12 कर दिया, 88 में हो जाएगा पैदा। ठीक है, इन अ गार्डन देयर आर 7 ट्रीज, मैंगो ट्री इज टॉलर देन एप्पल ट्री, तो मैंगो इज टॉलर देन एप्पल, एटलीस्ट 3 ट्रीज आर टॉलर देन मैंगो ट्री, तो 1 2 3 मिनिमम 1 2 3 4 5। ठीक है, पाइन ट्री इज टॉलर देन मैंगो ट्री बट शॉर्टर देन कोकोनट ट्री, तो पाइन ग्रेटर देन मैंगो बट शॉर्टर देन कोकोनट। ऑरेंज ट्री इज इमीडिएटली टॉलर देन एप्पल ट्री है। ओके, तो मैंगो, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, एप्पल ट्री विच इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट ट्री, 1 2 3 4 5 कितने थे, 7 लोग थे, एप्पल के आगे भी एक आएगा और यहाँ पे एक और होएगा ही होएगा। ठीक है, इनके बीच में भी हो सकता है कुछ ना कुछ। गुआवा ट्री इज़ नॉट शॉर्टर देन ऑरेंज ट्री, गुआवा ट्री ऑरेंज ट्री से शॉर्टर नहीं है, तो गुआवा ट्री को हम आगे कर देंगे ना, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, गुआवा ट्री को हम आगे कर देंगे और हाँ, ये कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, उधर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री सेकंड टॉलेस्ट ट्री, तुम बता तो नहीं सकते पर कोकोनट पर चल लो। विच ट्री इज इमीडिएटली टॉलर देन मैंगो ट्री, मैंगो से ऊपर जस्ट पाइन कर दो,
अगर ऐसा तो फ्रॉम 31 तो फॉलोइंग ट्री सेकंड टॉलेस्ट ट्री, ये भी नहीं बता पाते, ये भी तो नहीं बता पाते ना। अगर ऐसा था तो उनमें तो बीच में कुछ बताया ही नहीं है। तो अगर हमने कोकोनट उधर लिया है तो और पाइन तो है ही, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो पाइन होगा इमीडिएटली टॉलर देन मैंगो पाइन। अच्छा मैंने 2 मिनट इसके लिए लगा दिए हैं, फक यू। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ल्ड, एल्गोरिथम व्हिच हैज एनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ल्ड एज एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो A B C D E F G H I नहीं है, हाँ A B C D E F G H I L M N O P Q R S G H I J K L M O P Q R S T R S T U V I J K L I J K L T U V H H M N O P Q R S T U H I J K L D U V W X Y Z I J K L M N O P Q R J H I J K L 3। ठीक है, आगे बढ़ा। ओके 8 पर्सन्स हैं सिट इन हॉरिजॉन्टल रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2% sit between G and F who sits third from one of the extreme ends। 1 2 G F sits third from one of the extreme ends ना, 1 2 G। ठीक है, G sits second to the right of A, G sits second to the right of A, G sits second to the right of A, D doesn't sit adjacent to A and F, D यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, D यहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे भी नहीं आएगा, तो D doesn't sit adjacent to A and F, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। E sits second to the left of D, तो D यहाँ पे sits second to the left of D नहीं, तो D यहीं आएगा। E sits second to the left of D, E sits second to the left of D, neither C nor H is adjacent to F। अब neither C nor H adjacent to F, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ऊपर आ जाओ। ठीक है, D doesn't sit adjacent to A और F, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ कहीं भी आ जाएंगे। E sits second to the left of D, E sits second to the left of D, यहाँ तो आने नहीं रहा, E sits second to the left of D, ये आएगा left of D, neither C nor H adjacent to F। neither C nor H adjacent to F। ठीक है, at most 2% sit between D and C, at most 2%, at most, तुम्हारी मर्जी है, हम तो कहीं पे भी करते हैं। हाँ ठीक है, how many persons sit between F and E, how many sit between F and E, 1 can be determined। who sits second from the right end of the row, second from the right end of D। ठीक है, who sits immediately left of the C, immediately left of the C, ये कैन बी डिटरमिन्ड वाली सीन थी, पर कोई नहीं, या तो कोई भी नहीं, और अदरवाइज तो फिर यहाँ आएगा तो D, फिर तो ये सही सेट करना पड़ेगा तुम्हें। फाइंड द ऑड वन आउट BA F E, B यहाँ सही है, A के G वो भी सही है, G के में C वो ठीक है, F के में H वो ठीक नहीं है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू F, इमीडिएट राइट। ठीक है, ओके ओके। इफ कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड आर रिप्लेस्ड विद इमीडिएट सक्सेडिंग लेटर, कॉन्सोनेंट को आगे बढ़ाना है वर्ड से मोर देन 2 वावल्स, मोर देन 2 वावल्स, कॉन्सोनेंट को आगे बढ़ाओ, बस TU हो जब आएगा, RS नहीं हो रहा, A तो है ही, A तो मोर देन 2 PQ नहीं हो जाएगा, है ना, तो S का T नहीं होगा, P का Q नहीं होगा, O को बढ़ाना नहीं है, OU मोर देन 2 बोला है, मोर देन नहीं, R का S नहीं, M का N, P का Q नहीं, H का IO हो जाएंगे, LMDE 1 हो गया, P का Q, L का M नहीं है, Q और M 2 तो नहीं है, तो फिर 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो 1 नहीं है, आगे बढ़ाओ। ओके, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट एंड,
रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। देन विच इज द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड सबसे छोटा, सेकंड सबसे छोटा कौन सा है? HIJKLMNO P, सेकंड सबसे छोटा P है, तो P का कितना निकालना है? सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड लेटर L। ओके, आगे बढ़ाऊँ। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट P and third letter of the fourth word from the third letter of the fourth word from the left L, K L M N O M N O L M N O, 3 first letter of the second word from the left, first letter of the second word from the left, तो S हुआ ना, M N O P Q R 6। If all the letters are arranged in alphabetical order, letters within the word from left to right, then which of the following word doesn't start with a vowel? तो left to right, तो ये इसमें A है, इसमें A है, A B C D E F G, D से ये PQRST, तो होल्ड नहीं शुरू हो रहा, D से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, 8 मिनट मैंने कितने लगा दिए? 12 मिनट लगा दिए 17 के लिए। ओके, नो जंक इज़ हेल्दी, नो जंक इज़ हेल्दी, सम हेल्दी इज़ बेटर, सम हेल्दी इज़ बेटर, ओनली अ फ्यू बेटर इज़ गुड, ओनली अ फ्यू बेटर इज़ गुड, बाकी का बेटर गुड नहीं है, ठीक है। सम हेल्दी कैन बी गुड, सम हेल्दी कैन बी गुड, यस इट कैन बी, सम बेटर इज़ नॉट जंक, सम बेटर इज़ नॉट जंक, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट, सम इंग्लिश इज लिटरेचर, only a few literature is language, only a few literature is language, बाकी literature language नहीं है। all English can be language, all English can be language, yeah it can be, who stopped it? Okay, some language is subject, some language is subject, maybe or maybe not, only conclusion follows। अच्छा, 6 persons are sitting around the corner of a hexagonal shaped table, facing towards the center and some are facing away from the center, ठीक है। C sits of, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, C sits second to the left of A, 2 3 4 5 6, C sits second to the left of A, और C sits second to the left of A, नहीं सॉरी, C sits second to the left of A, B sits immediate right of E, B sits immediate right of E, E who faces opposite direction to that of F, EF op direction, ठीक है। 2 person sit between C and E, 2 person sit between C and E, sit between 2 person sit between C and E, A doesn't sit adjacent to D, A और D एक साथ नहीं आएंगे, adjacent to D, B and C face same direction, BC same direction, B and C face same direction but opposite to that of E, up to E, C doesn't sit immediate left of D, C doesn't sit immediate left of D, F doesn't face towards the center, F out, ठीक है, F out E in, मैंने इसको इन मान लिया, F out E in, F out है, F out है, E in है, E inside है, और E के राइट में B है, B sits immediate right of E ना, B sits immediate right of E, C to E है, C1 to E है, ये भी हो रहा है, ठीक है। और A और D एक साथ नहीं बैठेंगे, D वहाँ पे नहीं आएगा तो D यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, और D के इमीडिएट लेफ्ट में C नहीं है, ठीक है। और F आउट है, C to E भी,
तो क्या बचा इसमें, ए बी सी डी ई एफ बचा। ई और एफ अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो ई के राइट में बी था तो ई ऊपर, ई और एफ अपोजिट डायरेक्शन में थे। बी और सी सेम है पर अपोजिट टू हैं, बी और सी सेम है पर अपोजिट टू ई है। नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ इनको। और डी का ए और डी का क्या था, ए डजंट सिट एडजेसेंट टू डी। ए और डी की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं था ना, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं है। हु सिट्स अपोजिट टू डी, ओके क्या है, हेक्सागन है ना, हेक्सागन है तो ए सिट्स अपोजिट टू डी। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, 1। ठीक है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, सी विद रिस्पेक्ट टू डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होएगा क्या, तो इमीडिएट लेफ्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट हो सकता है। मैंने डी के बारे में, सी डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी डजंट सिट इमीडिएट, अच्छा इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं बैठता है, तो नीचे तो होएगा नहीं, तो ऊपर ही होएगा, ऊपर ही होएगा। सी विद रिस्पेक्ट टू डी इमीडिएट राइट है नहीं, 4 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 नहीं, 5 टू द लेफ्ट, ये ठीक था। ओके, इफ ऑल द पर्सन अरेंज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए in the clockwise direction, how many percent remain accept A? अच्छा, A B C D E F 2 ठीक है। अभी 2 मिनट बाकी हैं और मेरे हिसाब से मुझे क्या कर देना चाहिए, 3 मिनट में मैं इसके अलावा वो होंगे ना ये वाले। ओके, एस ग्रेटर देन डी, एस इक्वल्स टू पी है और पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है, तो एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी होएगा नहीं, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। एम कहाँ है, एम जेड पे आ जाएगा, एम जेड पी आ जाएगा, पर एम जेड पी नहीं, जेड ग्रेटर देन डी, तो जेड ग्रेटर देन पी, जेड ग्रेटर देन पी और इक्वल्स टू डी। ठीक है, जेड ग्रेटर देन पी, हाँ तो जेड ग्रेटर देन ओनली थर्ड फॉलोज, only conversion third is true. Okay, P greater than T, P greater than R S T सही है। Y greater than V, Y greater than R, R greater than T, पर V में तो नहीं जा पाओगे ना, नहीं जा पाओगे, नहीं हो पाएगा, 1 ही सही है। Z greater than S, Z M V O T, हाँ Z M 1 और 3 ठीक है। उसके बाद एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड पे तो पहुँच गए, पर जेड से डब्ल्यू हाँ बराबर है, 1 सही है। डी ग्रेटर देन पी, डी से जेड पहुँच जाओगे, जेड से पी में नहीं पहुँचोगे, तो दोनों सही हैं। और पी ग्रेटर देन जेड, पी इक्वल्स टू वी लेस नहीं, पी ग्रेटर देन जेड नहीं, ओनली 1 2। उसके बाद 1 मिनट 16 सेकेंड है, ये तो नहीं कर रहे हैं अभी हम, ये कर रहे हैं। इफ अ नंबर ये 1 इज एडेड टू ऑल द ऑड डेट्स एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, तो पहले 1 जोड़ना है 2 घटाना है, तो 2 घटाना है 1 जोड़ना है 2 घटाना है 1 जोड़ना है 2 घटाना है, जोड़ना है 2 घटाना है 1 जोड़ना है 2 घटाना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स आर रिपीटेड थ्राइस, तो 7 नहीं, 0 नहीं, 4 नहीं, 5 1 2 नहीं, 9 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद इस पर आ जाओ, तो ये 90 नंबर क्या था, ओके वो तो नहीं है। ओके, यू इज़ 20 मीटर वेस्ट ऑफ वाई, यू इज़ 20 मीटर वेस्ट ऑफ वाई, जेड इज़ 15 मीटर साउथ, तो जेड इज़ 15 मीटर साउथ ऑफ वाई, जेड इज़ 15 मीटर साउथ ऑफ वाई, एक्स इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ जेड, एक्स इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ जेड, V is 10 मीटर साउथ ऑफ x, V is 10 मीटर साउथ ऑफ x, नहीं हो पाएगा, नहीं, कोई बात नहीं।
गए। चलो एनालिटिक्स, ओके 77.5। हाँ गए थे। इसमें थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ लग रही थी हमको होने की। मेरी 100% वहाँ पे एक्यूरेसी थी, यहाँ पे 86% थी। रीजनिंग में थोड़ा और कर सकते थे, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं, एक दो क्वेश्चन और हो सकते थे ऑब्वियसली, पर इतना भी नहीं कि ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा मैथ में, हाँ ठीक है। रीजनिंग में 4 गलत हुए, मतलब कोई एक ना कोई हमने पजल ही गलत कर दी सीधे। कोई ना कोई पजल गलत करने का मतलब तुम समझ रहे हैं। 4 क्वेश्चन अगर वो सही हों, पहले सॉल्यूशन देख लें, पहले तो सॉल्यूशन देख लें। रीजनिंग में आओ, इंग्लिश नहीं। हाँ देखो है यही वाला, इसमें इतना टाइम दिया था और अरे बाप रे हाँ, दोनों क्वेश्चन इसमें कितना टाइम दिया देखो तुम। 97 सेकंड यहाँ गए हैं, 15 सेकंड यहाँ गए हैं, 2 मिनट गए हैं पूरे। और इसको मैंने इतना समझ के करने की कोशिश करी और बैक, ये दोनों करने ही नहीं चाहिए थे, इसके अलावा कुछ और कर लेना चाहिए था। और ये वाला फिर थ्राइस इन द न्यू नंबर, रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा था यार। 1 इज एडिड था, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द, अच्छा इवन पोजीशन पे थोड़ी ना था। गलत पड़ लिया भैया, गलत पढ़ लिया। लेफ्ट ऑफ बी, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3। अरे यार ये गलत नहीं करना चाहिए था, एक ये गलत नहीं होना चाहिए था, बस एक ही गलत पढ़ लिया तो ये भी 2 बचा सकते थे, पर ये 2 तो जाने थे, मतलब टर्म इसमें लगाया था। ठीक है, 2 का मतलब होता है 2.5 नंबर का, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। 2.5 के बाद ये जो है वी आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ, यार इम्पोर्टेंस होएगा यार, ये तो कोई बात ही नहीं होती। इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ, इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन कुछ नहीं होता है। इन सी रिप्लेस द एडजेक्टिव इम्पोर्टेंट विद द नॉन इम्पोर्टेंस, ये बस कर दिया इनने। द विल मॉडिफाई अ नाउन, द सी इज द राइट आंसर, वेल बीइंग एंड देयर की रोल। तो नहीं, आंसर तो ए ही होना चाहिए ना। इन सी में रिप्लेस नहीं करना है इम्पोर्टेंट को, ए में रिप्लेस करना है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। इसको रिपोर्ट करिए, आप इसको रिपोर्ट करिए, इनकरेक्ट आंसर, सबमिट, क्लोज। एक तो ये बढ़ेगा 2.5 से 3.75 हुआ, ठीक है। और sentence like this, how the recent spike in case of certain serious hepatitis in children around the world has been widely extensively reported, counted. Severe cut will be contextually apt here and should be replaced with severe. तो स्पाइक क्यों होएगा मेरे भाई? अच्छा मैंने कुछ गलत लिख रहा है। इफ ऑल द ऑल फोर वर्ड्स आर करेक्ट, नहीं सीवियर गलत है ना, ये भी रिपोर्ट करिए। रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर, सबमिट, क्लोज। तो 2.5 था पहले, वहाँ पे 2 3 4 हो गए। 4 के बाद आप यहाँ आइए। अच्छा ये ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ कि मैं ये कर रहा था तो उसको तो गलत होने का हक है। 4 के बाद काउंटिंग ऑन दी, हाँ होप कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ये दोनों गलत होने थे, हाँ ओके। 4 का मतलब होता है 4 और एक 5 नंबर अगर होने चाहिए थे, 5 नंबर अगर होने चाहिए थे तो 82.5 होता, तो कहीं पहुंचते हम। अरे यार 100 तो नहीं पहुंचते, पर 99.54 से क्रॉस कर देते। ठीक है,
और वैसे भी अगर मान लो वो तो नहीं, तो पर 2.5 नंबर तो है ही ना, तो 89 हो जाएंगे ना, नहीं 79 तो हो ही जाएंगे, तो दैट इज़ 99.07. ओके, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4th रैंक, और है ना 4th रैंक. ओके, डन.